there. So today we'll understand how IPL teams make money and at the very same time how the brand values are getting calculated. So many times you must have seen कि Mumbai Indians का brand value 800 crores है, Rajasthan Royals का brand value 300 crores है, SRH का brand value 500 crores है. So ये जो brand values आप देखते हो, after every year's IPL you see this brand value coming up. There are many investment banks who are calculating this brand value. So ये brand value कैसे calculate होती है? What is the method they are using to calculate this brand value? And at the very same time, what are the factors that are affecting the brand value of these teams is what we're going to understand. Alright, so I have divided this particular video in 3 sessions. In the first part, we'll be talking about how BCCI makes money from the IPL. At the very same time, how IPL teams make money. And the third part is how the brand values are getting calculated. So BCCI ने ही IPL शुरू किया था and BCCI ने क्या मोटिव से स्टार्ट किया था, कितना रेवेन्यू उन्होंने सोचा था, वो कैसे अर्न करते हैं is what we're going to understand. And secondly, we'll understand that the teams that we have in the IPL, how do they make money, and at the very same time, how the brand values are getting calculated. So the first way how BCCI makes money is through media rights. So आपने देखा होगा 2008 से लेकर 2017 तक हम IPL जो है वो सोनी पे देखते थे. तो सोनी ने करीबन 8,200 करोड़ रुपए BCCI को दिए थे ये मीडिया राइट्स लेने के लिए. एंड आप मानोगे नहीं, करीबन 40 साल या 50 साल पहले BCCI को अलग अलग चैनल्स को पैसा देना पड़ता था कि आप हमारा मैच दिखा दीजिए. बट नाउ इट इज नॉट द केस. द टेबल्स हैव टर्न्ड. नाउ द कंपनीज और द चैनल्स आर पेइंग द BCCI टू मेक श्योर दैट उनको वो राइट्स मिले कि वो जो मैचेस है IPL के उसको अपने चैनल पे दिखा सके. सो सोनी हैड पेड समवेयर अराउंड 8,200 crores फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 2008 से लेकर 2017 तक. So per year it translates into a figure of 820 crores. After that we have been seeing IPL on Star. हम स्टार स्पोर्ट्स पे देखते आ रहे हैं, हम हिंदी में, इंग्लिश में, हर एक लैंग्वेज में हमको जो देखना है स्टार दिखा रहे हैं हमको. एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर हमको इंटरनेट के थ्रू देखना है तो हम हॉटस्टार यूज कर रहे हैं. सो पूरा का पूरा जो IPL स्क्रीनिंग का काम है, चाहे वो इंटरनेट पे हो या चाहे वो टीवी पे हो, वो भी स्टार कर रहा है. सो स्टार ने ये कॉन्ट्रैक्ट 2018 में BCCI से लिया था एंड दे पेड समवेयर अराउंड 16,347 crore रुपीज. सो इतना अमाउंट उन्होंने दिया था ये 5 साल के लिए, 2018 से लेकर 2022 तक के लिए, which translates somewhere into an yearly figure of 3,287 crores. So Star 3,287 crore rupees BCCI को पे कर रहा है ताकि स्टार IPL को अपने चैनल पे दिखा सके. सोनी का ये अमाउंट बहुत कम था, ऑलमोस्ट 1/4 था. सोनी 820 करोड़ ही पे कर रही थी, पर स्टार जो है वो समवेयर अराउंड 3,287 करोड़ रुपीज पे कर रहा है. क्या ये सारा का सारा पैसा BCCI की पॉकेट में जाता है? नो. A good part of it, rather somewhere around 50% goes to the IPL franchisees as well. So इतना सारा जो मीडिया राइट से पैसा आता है BCCI के पास, वो सारा का सारा BCCI की जेब में नहीं जाता है. They share somewhere around 50% with the IPL teams और ये ऑलमोस्ट एक इक्वल प्रोपोर्शन में उन टीम्स में बढ़ता है. The next way how BCCI makes money is through title sponsorship. जब हमने IPL देखना स्टार्ट किया था 2008 में, it started with DLF IPL. After that पेप्सी ने ये राइट लिया, पेप्सी टाइटल स्पॉन्सर बना. So उसके बाद पेप्सी IPL स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद we saw the Chinese company coming in, that is Vivo. और हम Vivo IPL करके देखने लग गए. However, there were conflicts between India and China last year. Therefore, Vivo could not be the title sponsor, and the title sponsorship for 1 year was passed on to Dream 11. Alright, so DLF ने जब उसने टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया था तो करीबन 40 करोड़ रुपीस DLF ने पे किए थे पर ईयर बेसिस पे. पेप्सी के पास जब ये राइट आया था टाइटल स्पॉन्सरशिप का, तो पेप्सी ने BCCI को करीबन सालाना 79.2 करोड़ रुपीस पे किए थे. ड्रीम 11 जो 1 साल के लिए आया था, उसने BCCI को समवेयर अराउंड 220 करोड़ रुपीस पे किए थे. और वीवो जो करंट स्पॉन्सर है, उनका ये लास्ट ईयर है, दे पेड समवेयर अराउंड 440 करोड़ रुपीस पर ईयर to BCCI to make sure that they are the title sponsor. Again, the entire money does not go to the BCCI. A good portion of it, that is somewhere around 50%, goes to the IPL franchises as well. Again, पूरा का पूरा 50% जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है सारी टीम्स में. रादर कुछ टीम्स को ज़्यादा मिलता है इसका और कुछ टीम को कम मिलता है, बेस्ड ऑन अगेन हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड एट द वेरी सेम टाइम their brand value. Apart from that, we also have official sponsors. That is, we have Upstocks, we have Dream 11, we have Cred, we have Unacademy. ये सारे जो है BCCI के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स है IPL के लिए.
इनसे जो रेवेन्यू आता है अ गुड पोर्शन ऑफ इट गोज टू स्टार, एट द वेरी सेम टाइम अ गुड पोर्शन ऑफ इट गोज टू बीसीसीआई एज वेल। आप लोग ने बहुत बार आकाश चोपड़ा को बोलते हुए सुना होगा कि आफ्टर द आईपीएल एंड्स द फर्स्ट थिंग दैट ही इज गोइंग टू डू इज बाय अ टाटा सफारी। सो अगेन टाटा सफारी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द आईपीएल एंड they have had a contract with the BCCI. So somewhere around BCCI earns a good amount of revenue from these official sponsors as well. That amount is somewhere around close to 60 to 70 crore. However, there are no official numbers, but yes, this is the approximate amount which BCCI earns from these official sponsors that we have. The next question that we are trying to answer was how IPL teams make money. So again, a good portion of the media rights come to the IPL team. At the very same time, a good portion of title sponsorship as well come to the IPL team. थर्ड जो रेवेन्यू सोर्स है इनका दैट इज टिकट सेल्स। सो टिकट बेचने से बहुत पैसा आता है टीम्स के पास, और जो फ्रेंचाइजीज है उन पर्टिकुलर फ्रेंचाइजीज का एक ऑफिशियल ग्राउंड है जहाँ पे जो भी मैचेस होते हैं उससे जो टिकट सेल होता है वहाँ से जो पैसा है वो फ्रेंचाइज के पास आता है। अगेन दिस अमाउंट डिफर्स फ्रॉम टीम टू टीम। अगर ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा है तो वहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो केकेआर के पास थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू आता है टिकट सेल्स के थ्रू। बट अगेन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का फिरोजशाह कोटला जो ग्राउंड है, अरुण जेटली जो ग्राउंड है, उसमें थोड़ा सा कम रेवेन्यू आता है बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड। ऑलराइट, तो जो भी टीम का जो होम ग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग उनको उतना टिकट से रेवेन्यू कलेक्शन होता है। द फोर्थ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द आईपीएल टीम इज द स्पॉन्सर्स विच दे हैव। यहाँ में मैं टीम स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ। आपको दिखेगा कि टीम स्पॉन्सर्स इनके अलग अलग होते हैं। इनकी जर्सी के सामने एक स्पॉन्सर लिखा होता है, इनके शोल्डर पे भी होता है, इनके बैक पे भी होता है। दे हैव स्पॉन्सर्स ऑन द ट्राउजर्स एज वेल। सो आईपीएल में ही मैंने ऐसा देखा है कि एक टीम के पास करीबन 8 से 9 स्पॉन्सर्स है और अलग अलग पोजीशन के लिए उनको अलग अलग बिड्स ऑफर होती है, अलग अलग रेवेन्यू उनको यहाँ से कलेक्ट होता है। इनफैक्ट जियो ने जो ये टीम स्पॉन्सरशिप को देखा है वो बहुत ही स्मार्ट वे से देखा है। जब एक लेफ्ट हैंडी बैट्समैन बैटिंग करता है तो इस पैच पे दिखता है उसका जियो का लोगो, और जब एक राइट हैंड बैट्समैन बैट करता है तो उसका यहाँ पे दिखता है। सो दे हैव बीन वेरी स्मार्ट हियर एंड दैट इज हाउ टीम स्पॉन्सर्स वर्क अराउंड। दैट इज जो भी टीम्स है उनके ये स्पॉन्सर्स होते हैं। एरोस आपने देखा होगा एज ए स्पॉन्सर है, मुथूट फाइनेंस आपने देखा होगा एक स्पॉन्सर है। सो देयर हैव बीन मल्टीपल स्पॉन्सर्स फॉर दीज टीम्स जो इन टीम के ही स्पॉन्सर होते हैं, और जो भी रेवेन्यू आता है टीम्स के पास ही आता है। यहाँ पे बीसीसीआई को डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता है। एंड लास्ट वन इज द विनर्स प्राइज मनी। विनर्स प्राइज मनी जो है वो करीबन 20 करोड़ है। And if you notice by the end of the video you'll realize that winners prize money is the smallest amount of what they actually earn. Alright, so winning an IPL is very important for teams, but at the very same time it is not the most important income source for the teams. Alright, so these are the 5 important sources जिनके through जो teams है हमारी they make their money. Portion of title sponsorship makes somewhere around 70% of the total revenue. Apart from that ticket sales से और टीम स्पॉन्सर्स से और विनर प्राइज मनी से करीबन बाकी का 30% जो है वो आता है। ऑलराइट, सो पोर्शन ऑफ मीडिया राइट्स अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें यहाँ पे, सो समवेयर अराउंड 3,287 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को मिलते हैं। उसमें से 50% वो आईपीएल टीम्स को पास ऑन करते हैं। सो दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ रफ फिगर ऑफ 1,644 करोड़। अगर मैं मान लूँ कि सारी टीम्स को इसका इक्वल पार्ट मिलता है, सो करीबन 205 करोड़ रुपए हर टीम को मीडिया राइट्स के थ्रू आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट और इट द मेजर पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू। देन जो उनके स्पॉन्सर्स है, जो टीम के स्पॉन्सर्स है, जो 8 से 9 आप अलग अलग स्पॉन्सर्स देखते हो उनकी जर्सी के ऊपर, उनसे करीबन इनको 60 करोड़ का रेवेन्यू दे गेट टू कलेक्ट। देन वी हैव टाइटल स्पॉन्सर्स, अगेन दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम द बीसीसीआई। सो 440 करोड़ अभी टाइटल स्पॉन्सरशिप का अमाउंट है। उसका 50% अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ फिगर ऑफ 220 करोड़। Alright, again if I assume that ये 8 टीम्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है, so that number translates into somewhere around 27.5 crore per franchisee. Alright, so this is how it works around. Then we have ticket sales. टिकट सेल्स में मैंने एक एवरेज नंबर लिया हुआ है जो R2 टीम्स के लिए एप्लीकेबल है। दैट नंबर इज समवेयर अराउंड 4 करोड़ पर मैच। Alright, अभी ऐसा हो रहा है इस आईपीएल में कि होम टीम का मैच उसके होम पे नहीं हो रहा है। ऑलरेडी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ होम टीम और अवे टीम राइट नाउ। सभी के लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं। बट इफ़ वी लुक एट द आईपीएल इन 2009 और उसके पहले के आईपीएल की बात हम करें, सो वहाँ पे होम और अवे का कॉन्सेप्ट था। तो करीबन एक टीम 7 मैचेस अपने होम पे खेलती थी और 7 मैचेस अवे पे खेलती थी। तो जो होम पे वो लोग खेल रहे होते हैं, तो जो भी टिकट सेल्स होती है
उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू टीम्स कमाती है। सो एवरेज रेवेन्यू 4 करोड़ जितना रहता है अगर हम सारे 8 अलग अलग राउंड्स को कंसिडर करें। सो टोटल रेवेन्यू अगर 7 मैचेस का हम देखें तो 28 करोड़ बनता है, जिसका 80% ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजी के पास जाता है। सो दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ फिगर ऑफ 80% मल्टीप्लाइड बाय 28 करोड़, दैट इज 22 करोड़। सो इतना अमाउंट फ्रेंचाइजी के पास आता है। एंड द लास्ट वन वी हैव इज दिस इज अ इफ एंड बट केस सिनेरियो वेयर बाय अगर आईपीएल जीतती है जो टीम उसको 20 करोड़ से एडिशनल मिलता है। सो इसका लास्ट सोर्स ऑफ इनकम ये बनता है, अगर हम जीतते हैं आईपीएल तो आपको 20 करोड़ रुपए और मिलेंगे। सो वी हैव दिस 5 मेजर sources of revenue for the IPL teams. We had 2 major sources of revenue for the BCCI, and then at the very same time they were official sponsors for the BCCI. But IPL teams के लिए 5 अलग-अलग वे है जिसकी तरह से जिसके बेसिस पे वो लोग अपनी जो इनकम है वो कमा पाते हैं। पहले मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सर्स का अमाउंट इतना बड़ा नहीं था, इसलिए 2017 तक आईपीएल टीम्स लॉसेस करती थी। बट जैसे जैसे ये अमाउंट इंक्रीज हुआ वैसे वैसे बीसीसीआई एक अच्छा प्रोपोर्शन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है, एंड आफ्टर 2018 मोस्ट ऑफ द आईपीएल टीम्स हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल। नाउ द क्वेश्चन इज, रेवेन्यू तो हमको समझ में आ गया, बट ये जो ब्रांड वैल्यू हम बार बार देख रहे थे कि जो सीएसके का ब्रांड वैल्यू है वो 2019 में 732 करोड़ था, पर अब 611 करोड़ ही है। मुंबई इंडियंस का 809 करोड़ था, पर अब 761 करोड़ ही है। सो ये जो ब्रांड वैल्यूज है ये क्यों कम हो रहे हैं, इज समथिंग दैट वी नीड टू आंसर। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव द मेथड दैट इज रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड। In the relief from royalty method, what we are going to do is we are going to calculate the value of a brand or a franchisee that we are talking about. ये method intangible assets को calculate करने के लिए help करता है. So since we are talking about an intangible asset, this method will help us calculate the value of an intangible asset, that is the franchise value or the brand value of the franchises that we have. Okay, so how it works around, let us understand that. So first we need to calculate the revenue. ऑलराइट, कि जो भी हमारी ब्रांड है उसकी रेवेन्यू कितनी आएगी। सो से फॉर एग्जांपल वी ऑलरेडी डिड दैट, द नंबर केम अराउंड टू बी समवेयर अराउंड 334.5 करोड़। ये नंबर हमारा टोटल ब्रांड का रेवेन्यू आया था इन द ईयर 2021। दिस वाज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ऑलराइट, so likewise we need to calculate this revenue for the upcoming years as well, for the year 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, so on. All right, so this number we need to calculate that what will be the revenue that the brand will be generating. Now in the relief from royalty method what we assume is कि अगर मुझे ये ब्रांड यूज करनी है या फिर ये ब्रांड का नेम यूज करना है, so मुझे ब्रांड को कितनी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम टेकिंग एन हाइपोथेटिकल नंबर हियर, से फॉर एग्जांपल मुझे ब्रांड को 20% मेरी रेवेन्यू का पे करना पड़ेगा। आई एम स्टार्टिंग माई ओन हॉकी टीम, इंडिया के जो हॉकी का लीग है उसमें आई वॉन्ट टू नेम माई टीम एज चेन्नई सुपर किंग्स, और मुझे ब्रांड नेम यूज करना है। सो in case since I'm using this brand name, some portion of my revenue should be growing to the CSK owners as well. So वो कितना portion मेरी revenue का जाना चाहिए is the royalty amount that we need to figure out. So here again I've taken an hypothetical number. We do not have the real data. The real data is with the investment banks. They figure out the real data with a lot of qualitative factors combined with quantitative factors, and then they arrive at a number. But since we do not have that much data, we will go around with a hypothetical number and understand how this method works around. So say for example, I've figured out that number to be, or hypothetically I've taken that number to be somewhere around 20%. So 20% ये जो मैंने number लिया, so अब ये सारी जो brands है, ये जो भी हमारी आईपीएल की ब्रांड है या फिर जो भी हमारी आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, उसका जितना भी रेवेन्यू आने वाला है 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, उनका 20% मैंने रॉयल्टी के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। अगेन हर साल की रेवेन्यू डिफर करेगी, हर साल मीडिया राइट्स का अमाउंट अलग होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई साइन करेगा, जो टाइटल स्पॉन्सर होगा उसका अमाउंट अलग होगा, डिपेंड्स अपॉन हाउ बीसीसीआई इज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। टीम स्पॉन्सर्स होंगे वो अलग अमाउंट दे रहे होंगे, टिकट सेल से अलग पैसा आ रहा होगा। सो हमको इंडिविजुअल रेवेन्यू हर एक ईयर का कैलकुलेट करना ही करना है, बट फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट आई हैव टेकन इज कि रेवेन्यू जो है वो 10% से ग्रो कर रहा है, एंड सिंस आई हैव फिगर्ड आउट दैट द रेवेन्यू इज ग्रोइंग बाय 10%, मैंने क्या कर लिया है 20% उसका रॉयल्टी का प्रपोर्शन ले लिया। सो ये मेरा रॉयल्टी का अमाउंट आया। रॉयल्टी का अमाउंट टर्न्स आउट टू बी 20% ऑफ द रेवेन्यू दैट द ब्रांड और द फ्रेंचाइजी इज जनरेटिंग। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। अब इस मेथड में होता क्या है, ये जो रॉयल्टी का अमाउंट है इन सबकी पोस्ट टैक्स डिस्काउंटेड वैल्यू टुडे इज व्हाट द ब्रांड वैल्यू इज। सो रॉयल्टी हमारे पास 66.9 करोड़ है, 73.59 करोड़ है, 80.95 करोड़ है, ये सारी प्री टैक्स है।
हमको इसको पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करना है. हाउ कैन वी कैलकुलेट इट पोस्ट टैक्स? 66.90 multiplied by 1 minus 25.17%. Likewise, 73.59 multiplied by 1 minus 25.17%. So what we need to do is we need to calculate a post-tax royalty amount. ये post-tax royalty amount हमको निकालते जाना है for multiple years, for the future years that we have. And then we need to discount it, bring back to the current time period, and that value would be nothing but the value of the franchisee that we are talking about. So again I have taken it hypothetically, मैंने tax rate 25% लिया है और मैंने उस तरीके से post tax जो royalty से revenue है वो calculate कर लिया है. Alright, so this is how we have figured out this number. What I have done is, again after 2026 I am assuming that the royalty amount would grow at a constant growth rate of 4%. Again, this is again just for simplicity. In actual, IPL is a very new tournament compared to the other leagues that we have around the world, be it basketball, be it football. So वो सारे काफी पुराने tournaments हैं, वहाँ पे थोड़ी maturity आ गई है इंडस्ट्री में, पर हमारे यहाँ पे IPL में इतनी maturity नहीं आई है. So in that case, what I have done is I have taken a constant growth rate of 4% after 5 years, which could be on the higher end as well. हम इसको higher end पे ले सकते हैं, but again due to the paucity of the data set that we have, and since we are trying to simplify things, I've taken it to be 4% so that we at least understand how relief from royalty method works around. All right. So 2016 तक के तो मेरे पास कैश फ्लोज एक तरीके से है. ये पोस्ट टैक्स जो रॉयल्टी का अमाउंट है ये कुछ भी नहीं है, पर ये कैश फ्लोज है. ये तो कैश फ्लोज हमारे पास ऑलरेडी है. 2026 के बाद क्या होगा? एक कांस्टेंट रेट से जो मेरा कैश फ्लो है या फिर मेरा पोस्ट टैक्स रॉयल्टी है वो ग्रो करेगा. सो से फॉर एग्जांपल वो ग्रोथ रेट 4% है, एंड फॉर each and every cash flow that we are going to get after 2026, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, 32 में, वो सारे जो भी कैश फ्लोज आने वाले हैं उनकी 26 पे मैं एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज दी टर्मिनल वैल्यू फॉर्मूला. टर्मिनल वैल्यू फॉर्मूला क्या कहती है कि 26 की आपके पास पोस्ट टैक्स रॉयल्टी अमाउंट है, उसको एक साल आगे लेके जाइए. कैसे लेके जाओगे आप? ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करके. So that is what we have done. We have multiplied it by 1 plus the growth rate, and then we'll divide it by discount rate minus the growth rate. So हमको टर्मिनल वैल्यू मिल जाएगी at the end of year 2026. फिर हम इसको वापस 5 साल डिस्काउंट करके आज के टाइम पे ले आएंगे, बट यस वी हैव रिसीव्ड दैट टर्मिनल वैल्यू. ऑलराइट, सो व्हाट आई हैव डन इज आफ्टर दैट मैंने इसको 5 साल डिस्काउंट कर दिया. 26 से लेके मेरे को 21 तक लाना था, तो 25, 24, 23, 22, 21 आई हैव डिस्काउंटेड इट 5 times. All right, so this is how it works around. Likewise, again the discount rate which I have taken equal to be 14%. Again, it is a hypothetical number, it could be any other number as well. Again, you need to have a lot of data to figure out the discount rate, the growth rate, and the royalty number. But what we are trying to do here is we are trying to understand the relief from royalty method. So once we do the discounting part, हमारे पास numbers आ चुके हैं. So 22 का जो भी revenue आने वाला है उसको एक बार डिस्काउंट किया, 23 का जो भी revenue आने वाला है उसको दो बार डिस्काउंट किया. If you can look at the cells, 25 का जो भी डेटा आने वाला है, जो भी revenue आने वाला है उसको हमने 4 बार डिस्काउंट किया. Alright, just a second. Yes. Likewise for the year 26 as well. Alright, so 27 का भी हमने यहाँ पे डिस्काउंट कर ही दिया था. अब यहाँ पे हम मान के चल रहे, say for example we are in the month of February. Alright, we are in the month of February, and in the month of February 2021 में भी जो रेवेन्यू आने वाला है वो कैलकुलेट होना बाकी है. Alright, so वो ऑलमोस्ट आ ही गया है, 2 महीने ही बाकी है. फेब से लेके मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है IPL, तो 2 महीने बाकी है. So वो चीज यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे कि उसको हम लोग को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं. तो 21 की भी रेवेन्यू को मैंने कंसिडर किया है रॉयल्टी के टर्म्स में, बट उसको मैंने डिस्काउंट नहीं किया. राइट, अगर हमारा IPL फिनिश हो चुका होता 21 का और फिर हम उसकी वैल्यू निकालते तो हम 21 का रेवेन्यू कंसिडर नहीं करते, 22 से ही कंसिडर करते, गोज विदाउट सेइंग. सो ब्रांड वैल्यू इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दीज कैश फ्लोज आफ्टर डिस्काउंटिंग and the discounted terminal value. Again, if you want to, if you do not want to include, say for example अभी वाला number for the year 2021 क्या होगा, 22, 23, 24, 25, 26 and 26 के बाद वाले सारे कैश फ्लोज का वैल्यू निकाल सकते हैं. Alright, so 660 turns out to be the brand value. Again, this number depends. अब मैंने यहाँ पे क्या assume कर लिया है कि हम लोग का ये वाला IPL finish हो गया है. Alright, अगर आपको assume करना था कि ये वाला IPL finish नहीं हुआ, इसका भी जो income है वो हमको कंसिडर करना चाहिए, and you are only 1 month away from the IPL, you might just take the revenue that you are going to generate in this year as well.
All right, so this is how you calculate your brand value. Again, the numbers are hypothetical. So to figure out those numbers, yes, you might pursue a career in intangible assets valuation and then figure out that ये values कैसे calculate होती है, hypothetical numbers कैसे आते हैं. We need a lot of data for that. But since I did not want to complex things for all of us, I have taken very simplified assumptions so that you understand how you can calculate the brand value of any franchise you can calculate the brand value of any franchise and how the numbers work around and how the very popular method that is relief from royalty method works around. Even Duff and Phelps, they use the very same method to calculate the brand value of the IPL teams that they post it every year. Thank you.